Now we will be learning about the Rowlatt Act. What was it? So, in 1919, Mahatma Gandhi launched a nationwide satyagrah against the proposed Rowlatt Act. ब्रिटिशर्स ने क्या बोला था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हम क्या करेंगे, तुम हमारी हेल्प करो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, बी विद अस, फाइट ऑन द बिहाफ ऑफ ब्रिटेन, टेक पार्ट इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड देन विल गिव यू सम काइंड ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम हम तुम्हें दे देंगे. लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं. वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या कर दी, हालत और ख़राब कर दी. इनकम टैक्स लगा दिया, राइट, बहुत सारे अलग टैक्सेस लगा दिए, महंगाई ऑलरेडी बढ़ गई थी, सो मेनी थिंग्स, है ना, तो परेशान करने लगे. उसी में उन्होंने क्या किया, एक रॉलेट एक्ट और लेकर के आ गए. हेल्प तो की नहीं, काम और खराब कर दिया रॉलेट एक्ट ला करके. अब ये क्या था, दिस एक्ट हैड बीन हरिडली पास्ड थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट द यूनाइटेड ऑपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स. अच्छा, ब्रिटिशर्स बहुत चालाक थे, तो उन्होंने क्या किया, एक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई और उसमें थोड़े बहुत इंडियंस को भी उन्होंने शामिल कर लिया. ठीक है, ताकि क्योंकि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ था, द रिवोल्ट विच टुक प्लेस इन 1857, तो उनको डर था कि कहीं दोबारा से ऐसा नहीं हो जाए, राइट. इसीलिए कांग्रेस की भी उन्होंने स्थापना करी, है ना. उसके अंदर कौन था, एओयू में थे उसके संस्थापक, विच वॉज अ ब्रिटिश. तो इन्होंने क्या किया, इंडियंस को एक तरीके से हम क्या बोलते हैं हिंदी में कि गोली दे दी, गोली देने वाला काम, है ना. तो थोड़े बहुत इंडियंस को भी उसमें उन्होंने बिठा दिया. इंडियंस ने अपोज किया कि आप इस एक्ट को पास मत करिए, बट स्टिल even after the opposition of the Indian members, this act had been hurriedly, मतलब जल्दबाजी में उन्होंने क्या कर दिया, पास कर दिया अपनी imperial legislative council से, despite the opposition of Indian members, है ना. अब what this act did, क्या करने वाला था ये act? This act gave the government enormous powers, मतलब गवर्नमेंट को उन्होंने बहुत सारे, मतलब इस एक्ट ने गवर्नमेंट को बहुत सारे पावर्स दे दिए. कैसे पावर्स? टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ठीक है, and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. मतलब किसी को भी कभी भी क्या कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, और कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई तो उसको उसी टाइम पर क्या करो, रिप्रेस करो. दिस वाज समथिंग वेरी वेरी बैड. Now Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience movement against such unjust laws, which would start with a Hartal on 6th April. Now Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience, which should be non-violent civil disobedience against such unjust laws. So this Rowlatt Act, don't you think it was an unjust law? I mean, you can arrest anyone, right? You can suppress any political activity which was something very bad, right? So Mahatma Gandhi wanted that we will be, opposing such unjust laws, but in a peaceful manner, okay, in a non-violent manner, okay, and it will start with a hartal. Hartal means strike on 6th of April, okay, against the Rowlatt Act. All right. So what happened? Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshops and shops closed down. So Mahatma Gandhi appealed to everyone, right? And rallies were organized in different cities. All the workers, they went on strikes. It's in railway workshops also, and shops were also closed down. Now Britishers thought that if railway workers will go on strike, तो फिर हमारा तो काम ही बंद हो जाएगा, है ना. So British administration decided to clamp down on nationalists. अब British administration ने क्या किया कि भाई इनको तो अब रोकना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा. So what Britishers did, they picked up local leaders and arrested them. Okay, so local leaders were picked up from Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi. Okay, so उन्होंने क्या किया, local leaders को pick up किया, कुछ को arrest किया, and they told that Mahatma Gandhi cannot enter Delhi. क्योंकि महात्मा गांधी, if he would have entered Delhi, तो लोग उनको और support करने के लिए आ जाते, तो movement और large scale पे चल पड़ता. Britishers were scared, so that is why they said that Mahatma Gandhi cannot enter Delhi. On April 10th, police in Amritsar fired on a peaceful procession. Okay, so people were protesting everywhere, people were organizing rallies everywhere. Similarly, some people in Amritsar organized a peaceful protest, right? And police fired on these people. अब इसका, इस पुलिस के इस एक्शन का रिएक्शन क्या हुआ, राइट? एक्शन रिएक्शन थ्योरी, which provoked widespread attacks on banks,
पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशन. लोग इससे बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए. पीपल गॉट एंग्री एंड दे अटैक्ड बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशंस, all those organizations which were run by Britishers, right? अब ब्रिटिशर्स ने क्या अपना रिएक्शन दिया? ब्रिटिशर्स ऑल्सो कुड नॉट टेक इट, है ना. तो उन्होंने क्या किया? मार्शल लॉ लगा दिया एंड जनरल डायर टुक ओवर कमांड. ठीक है, जनरल डायर कौन था? ही वॉज अ ब्रिटिश ऑफिसर. इसने क्या किया? मार्शल लॉ लगा दिया दैट पीपल कैन नॉट गैदर हियर एंड देयर. ठीक है, और जनरल डायर के हाथ में अब क्या आ गई? कमांड आ गई. बट ही मतलब इन्होंने थोड़ा बहुत ये चोरी छुपी किया. मार्शल लॉ जो लगाया, बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन दी नहीं इस बारे में, राइट. सो व्हाट हैपेंड on 13th April 1919, the unfortunate incident, the most unfortunate incident happened, which is called the Jallianwala Bagh massacre, right? So 13th April, you all know that is the day of Baisakhi. पंजाब में लोग बहुत अच्छे से this celebrate Baisakhi, है ना. So what happened? A huge crowd gathered in the Jallianwala Bagh, where a few people came to protest against the government's new repressive measures. तो उस जलियांवाला बाग में क्या था? Some people came to protest against this Rowlatt Act, while some came to attend the annual Baisakhi fair. Otherwise, जो protest करने तो आए हुए थे, उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी थे, those who only came to enjoy the Baisakhi fair. So 13th April, it is celebrated as Baisakhi, right? Especially in Punjab. तो वहाँ पर मेला लगा हुआ था. पीपल केम खाने पीने, थोड़ा बहुत मस्ती करने, झूला झूलने. ऑल एवरीबडी केम टू अटेंड द फेयर. नॉट एवरीबडी, फ्यू पीपल, राइट. एंड फ्यू पीपल केम टू प्रोटेस्ट. अब क्या हुआ? जनरल डायर जो था उसको तो मौका चाहिए था. तो इस जनरल डायर ने क्या किया? ही एंटर्ड जलियांवाला बाग. ही ब्लॉक्ड ऑल द एग्जिट पॉइंट. सारे एग्जिट पॉइंट उसने सारे गेट बंद करवा दिए. एंड ही ओपनड फायर ऑन द क्राउड. उसने सारे सोल्जर्स को क्या कमांड दी कि सब पे क्या कर दो? फायर कर दो. एंड ही किल्ड hundreds of people in Jallianwala Bagh. So this was the most unfortunate incident, जो क्या है? इतिहास का एक काला दिन है. After the Jallianwala Bagh massacre, news spread, strikes, clashes with the police and attacks on government buildings started. अब इससे क्या हुआ? People got furious and they started attacking government buildings. They, people went on strikes. There were many fights with the police, right? Because ये इतनी ज़्यादा घटिया इंसिडेंट था. जो जनरल डायर ने जो हरकत करी थी वो बहुत ही घटिया थी, तो लोगों को गुस्सा तो आना ही था. अब गवर्नमेंट ने इसका बदला लेने के लिए क्या किया था? गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन. गवर्नमेंट ने भी क्या किया? बहुत ज़्यादा बदतमीजी उन्होंने लोगों के साथ की. जितने भी लोग सत्याग्रह में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको, है ना, बोलते थे तुम नाक रगड़ के दिखाओ हमारे सामने. बहुत ज़्यादा उनके साथ उन्होंने उसको ब्रूटल वे में रिप्रेस किया, इस स्ट्राइक को, इस प्रोटेस्ट को. So Mahatma Gandhi thought, and they even arrested people. So Mahatma Gandhi thought that मैंने तो नॉन वायलेंस करने का सोचा था. अब नॉन वायलेंस से इतनी सारी चीजें हो रही हैं. वायलेंस ही वायलेंस कर रहे हैं ना ब्रिटिश सरकार हमारे साथ. भाई हम तो नॉन वायलेंस करना चाहते हैं, लेकिन ब्रिटिश सरकार तो हमारे साथ नॉन वायलेंस दिखाई नहीं रही है, वो तो वायलेंट हो रहे हैं. एंड many people were arrested also. So Mahatma Gandhi felt very bad about it. So he called off the Satyagraha movement as the violence spread. Okay.